ਉਂਝ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਔਗਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਥਾਹ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਗਣ, ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੂਲ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਉਮੈ ਆਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹੰ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਵਿਆਪਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਔਗਣ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੇਰੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਸਕਾ ਦਾ ਰਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਲਾਲਚੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭੌਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂਲ ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਹੰ ਭਾਵ। ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਂ ਗੁਲ ਬਸ ਕੀਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੁਏ ਪਤੰਗਾ, ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਗ ਹੈ ਕਾਮ। ਬਾਕੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਲ ਔਗਣ ਹੈ ਹਿਰਨ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਗੰਢੇੜੇ ਦਾ ਰਾਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਭੌਰੇ ਦੇ 'ਚ, ਨਾਸਕਾ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਤੰਗੇ ਦੇ 'ਚ। ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮਛਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹੰ ਭਾਵ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਣਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਪਨ ਖਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਬਲ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਗੁਣਵਾਨ ਕੋਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਅਹੰ ਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਹੰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਓ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦੋ।
ताकि दूसरा कम से कम छोटा होवे ते मैं वड्डा होवां। कई दफा देखते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे भी वड्डा होने का नाटक रचते ने, नकली मुछां ला के या नकली हाव भाव करके वो अपने आप को वड्डा होना दिखाने की कोशिश करते ने। जिंदगी के किसी तल दे च भी मनुख नूं छोटा होना परवान नहीं, चाहे वह बच्चा है, चाहे वह जवान है, चाहे वह बुढ़ा है, चाहे वह निर्धन है, चाहे धनवान है, चाहे निर्गुण है, चाहे गुणवान है। मनुख के अंदर यह भाव बनिया ही रहता है कि मैं वड्डा हाँ और मैं वड्डा होवां। दूजा छोटा है, जे नहीं तो उन्होंने छोटा कर देना है। मनुख की इस आहंग भाव तो तरह तरह के तशद्दद जुल्म बरपा हुए ने। संसार दे 90% जुल्म तशद्दद मनुख के आहंग भाव तो निकलता है। मैं वड्डा तू छोटा है, मैं हाँ तू है, और मैं सब कुछ हाँ तू कुछ भी नहीं। इस भाव ने समुची दुनिया नू, खास करके मनुखी दुनिया नू नरक बना के रख दिता है। ये हौ में किस किस थां ते व्यापक रहिंदी है, इस नू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल इस पावन पवित्र श्लोक विच खोले। मूल कमजोरी मनुख दी अहंकार है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला हौमे रोग मानुख को दीना। इहदा यह मतलब नहीं कि इहदे च बाकी रोग नहीं ने, बाकी कमजोरियां नहीं ने। कमजोरियां ते बाकी भी ने, वो उकसाहट नाल पैदा होंदियां ने, वो वक्त नाल पैदा होंदियां ने, समय नाल पैदा होंदियां ने। इक्को एक कमजोरी जो अठे पैर जागदियां सौंदियां मनुख दे दिल दिमाग विच रहिंदी है, वो है अहंग भाव। मैं हाँ और मैं बहुत वड्डा है, चाहे वड्डा है चाहे नहीं, पर वड्डा होके मैं दिखाना है। वड्डा होना मैं प्रगट करना है, और जे नहीं प्रगट कर सकिया तो कोई गल नहीं, वड्डा होना मैं मन लेना, मैं वड्डा ही हाँ। मन ते सकदा है, मनण दे ते कोई रोक नहीं। इस वास्ते मासूम बच्चा भी कई दफा अपने आप को बादशाह मन लेंदा है। यह गल वखरी है, वो खेल भी बादशाह ते वजीर का खेडदा है। अंदर उसके अंदर रुचि है कि मैं बादशाह, मैं वड्डा, मैं बहुत वड्डा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक दे इसी कमजोरी का जिक्र करते हैं, और गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी फरमान करते हैं, आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। और हकीकत है कि जद जद मनुख अपने आप को बहुत उच्चा कहलांदा है, वो कहलांदा इस वास्ते और खुद प्रगट करना भी इस वास्ते चाहता है कि उच्चा नहीं है। अगर उच्चा है तो कदी आखण की लोड़ भी नहीं पई। सूरज ने कदी नहीं आख्या कि मेरे च रोशनी है, चंद्रमा ने कदी नहीं आख्या मेरे विच शीतलता है, चंदन कदी ढंडोरा नहीं पिटदा मेरे ठंड है, मेरे सुगंधी है। सुगंधी खुद बोल पैंदी है, महक खुद बोल पैंदी है, शीतलता खुद ही दस देंदी है। जब शीतलता नहीं है तो फिर कहना पैंदा है शीतलता दा कि मेरे कुल है। जब महक नहीं है, सुगंधी नहीं है, तो फिर प्रगटावा करना पैंदा है। तो खैर अजो की 20वीं सदी मुखर भी बड़ी है, बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है। इतना बोलना पहले नहीं सी, और सारे बोल अहंकार तो पैदा हो रहे हैं। सारे बोल इस वास्ते ने कि मैं हाँ बोल बोल के अपनी होंद प्रकट करनी है। कोई अपनी जात प्रकट कर रहा है, कोई अपनी पात, कोई अपना रंग, कोई अपना रूप, कोई अपना स्वभाव, कोई अपने गुण, कोई अपनी धन संपदा, कोई अपनी बिरादरी, कोई अपना मुल्क, कोई अपनी भाषा, और कोई अपना प्रांत। गर्ज के बोलों दे सब कुछ यही प्रगट हो रहा है। जद कोई कहता है मेरा देश सब तो वड्डा है, तो ये एक भाव प्रगट होता है, मैं सब तो वड्डा, क्योंकि मैं छोटे देश का रहने वाला नहीं हाँ, मैं बहुत वड्डे देश का रहने वाला। हुण वड्डपना चाहिए तो वड्डे होने लई कोई सहारा चाहिए, तो कोई देश का सहारा पकड़ लेंदा है। मैं छोटे मोटे देश का रहने वाला नहीं, मैं बहुत वड्डे देश का रहने वाला। फिर मनुख ऐसा भी कह देंदा है मेरा मजहब बहुत वड्डा है। हुण मेरा मजहब बहुत वड्डा है तां ही मैं वड्डा, जे मेरा मजहब छोटा है तो फिर मैं छोटा। साडी भाषा बड़ी महान है, साडी कुल बहुत उच्ची है, तो कुल बहुत उच्ची है तां ही मैं उच्चा। जे कुल नहीं उच्ची तो फिर मैं कित्थों उच्चा। जात नहीं उच्ची तो मैं कित्थों उच्चा। जात नूं उच्चा करना, कुल नूं उच्चा करना, भाषा नूं उच्चा करना, प्रांत नूं उच्चा करना, मुल्क नूं उच्चा करना,
दरअसल ये भी मनुख ने अपनी हौमे नूं ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ और इन्हां ही तलां ते मनुख अपनी हौमे नूं प्रगटांदा है। मेरा देश महान, तो स्पष्ट हो गई गल, मैं महान हाँ क्योंकि मैं एक महान देश का नागरिक हाँ। हौमे अनेकां द्वार तो ये प्रगट होंदी है। मेरी भाषा कोई मामूली भाषा नहीं है, मेरा धर्म कोई मामूली धर्म नहीं है, मेरी कुल कोई मामूली कुल नहीं है। तो मनुख दी ये हौमे जो हिरदे दे च है, पर इस हिरदे दी टंकी नूं हज़ारां ही टूटियां लगियां ने। कोई जात दी, पात दी, भाषा दी, धर्म दी, रंग दी, रूप दी, नस्ल दी, जिहदे राहीं हौमे दा जल बाहर निकल रहा है। मनुख अपनी हौमे नूं प्रगटा रहा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि हौमे दे बोल जिंदगी दे हर कर्म दे उत्ते हावी ने, लागू ने और प्रगट होंदे ने। साहिब फरमान करते हैं, हौम विच आया, हौम विच गया, हौम विच जमिया, हौम विच मुआ। बुनियादी तो यह सतगुरु दसते हैं कि मनुख के आउण का कारण भी हौमे है। मैं हाँ ते कहते ने उतने चिर तक ईश्वर भी उसकी होंद नूं कायम रखता है। तू है ते जिस दिन बंदा कह देंदा मैं नहीं हाँ तू ही है, उस दिन कहते हैं मनुख ईश्वर हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। ईश्वर ते मनुख के विचकार अगर कोई दीवार है तो दूजा तीजा दीवार नहीं, मैं ही दीवार हाँ। और ऐसा ये व्यापक रूप दे अजौके समय च मौजूद है। साहिब कहते ने ये हौमे आण जाण का कारण बनती है, ये बार बार जन्म दिलाती है। हौमे यही बीज है। मैं हाँ तो परमात्मा कहता ठीक है तू है, तू रहेगा। साधना करते करते, भक्ति करते करते जिस दिन मनुख की सुरत उस अवस्था ते पहुंच जाए कि मनुख की जबान तो मैं ना निकले, तू ही तू निकले, कहते उस दिन मनुख ही परमात्मा हो जाता है, मनुख ही ईश्वर हो जाता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार दे भगत काना अपनी बाणी लैके आए सन। तो सतगुरां ने सुते सिद्ध कहा बई तू सुना, तेरा कलाम असी सुनना चाहते हैं। उन्हें अपनी रचना इत्थों आरंभ की, मैं ओही रे, मैं ओही रे। सतगुरु ने रोकया, कहने लगा नहीं, ये बोल असी सुनने भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज करना ते दरकिनार असी ये सुनने भी नहीं। जिस दे मनुख दी मैं प्रगट होवे, जिस दे मनुख दी मैं दा जिक्र होवे, मैं दा वाधा होवे, ये बोल असी नहीं सुनने, ये बोल असी नहीं दर्ज करने। असी ते ये बोल सुनने ने, ये बोल दर्ज करने ने। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। हुण मेरे विच मैं मिट गई, हुण तो मैं जिधर देखदा तू ही तू है, तू तो बिना हुण होर कुछ भी नहीं है। तो साहिब इत्थे फरमान करते ने, मनुख अहंकार करके ही आउंदा है, मैं भाव करके ही आउंदा है, और मैं भाव ही मौत का कारण बनती है। जिस दिन मैं मिट जाती है उस दिन मनुख नूं ऐसा बोध आउंदा है, न किछ जन्मे न किछ मरे। कुछ जमदा नहीं, कुछ मरदा नहीं। दावे नाल कह दिता है भगत सिरमौर श्री पीपा जी ने। आप कहते काया बहुखंड खोजते, नौ निद पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। श्री पीपा कहते ने दुहाई है हे ईश्वर, गल कुछ होर सी ते मैं समझदा होर रहा। मैं ते समझदा रहा कुछ जमदा है कुछ मरदा है, कुछ आउंदा है कुछ जाउंदा है। और इस तो इलावा कुछ खुशियां ने कुछ गमियां ने, पर अज मैनू पता चले तो कुछ भी नहीं, तू ही तू है। ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। हे राम, अज जद मैं तेरे विच लीन होया ते मेरा मैं भाव मिटिया, ते हुण मैं ऐसा समझदा कोई जमदा नहीं कोई मरदा नहीं, न किछ जन्मे न किछ मरे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कौन मुआ है कौन जमे, ये भ्रांतियां ने, ये भरम भुलेखे ने, सिर्फ मैं दे तल तो पैदा होंदे ने, सिर्फ अहंग भाव तो पैदा होंदे ने। तो साहिब कहते मनुख दा ये जिहड़ा अहंकार है, अहंकार दी सोचनी ही जन्म मरण दा कारण बनदी है। और अहंकार दी सोचनी ये कबूल करने ते मजबूर कर देंदी है, मेरा जन्म होया है मेरा मरण होया है, मैं जमया मैं मरांगा, मेरा जन्म होया है मेरी होंद है मैं प्रगट होया। साहिब कहते इस तरह हौमे बद्धा
ਆਵੇ ਜਾਏ। ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਵਣਾ ਜਾਵਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੋਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਨ, ਮੇਰਾ ਤਨ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ तो फिर मैं भी कुछ नहीं। तेरा तेरा संग्रह करिए तो फिर तू ही बचदा है, मैं नहीं बचदा। ते मेरा मेरा करिए तो फिर मैं ही बचदा है, तू एक पासे हो जाना है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फैसला, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। तो मेरे दा मैं नाल संबंध है, तेरे दा तू नाल संबंध है। भगत कहते ने तेरा 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 सब कुछ तेरा, एक दिन तू नाल जुड़ जाते ने। संसारी कहता है मेरा मेरा मेरा, अपनी मैं नाल ही जुड़े रह जाते ने। मैं बोझ है, मैं तनाव है, मैं भार है, मैं जन्म का कारण है, मैं मरण का कारण है, मैं दुखों का मूल है, मैं संताप का घर है, मैं विकारां दी खान है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र श्लोक दे प्रमाण किया है कि मैं मनुख दे हर किरदार दे हर कर्म दे छाई रहिंदी है। जो ऐसा जिक्र भी करता है कि मैं जमया मैं मरिया, तो इहदे च भी उहदी मैं मौजूद है, मैनू प्रगट कर रहा है, अहंग भाव नू प्रगट कर रहा है। हौं विच जमया हौं विच मुआ, हौं विच दिता हौं विच लिया। जे दाता बनया देण वाला भी बनया तो कहंदा मैं दिता मैं दानी। हुण जितना वड्डा दानी उतना वड्डा अहंकारी, जितना वड्डा ज्ञानी उतना वड्डा अहंकारी। इसनूं मनोविग्यानियां ने भी मन लिया, क्योंकि वड्डे अहंकार लई वड्डा दान चाहिए, वड्डे अहंकार लई वड्डा ज्ञान चाहिए। अजोकी सदी ज्ञानी सदी है। पहले इतना ज्ञान पृथ्वी ते नहीं सी जितना अज है। जितने विद्यालय ने, जितने कॉलेज ने और जितने महाविद्यालय ने, ये पहले पृथ्वी ते नहीं सन, अज ने। अज मनुखता जितनी पढ़ी लिखी है पहले नहीं सी। अज मनुखता को जितना बोध ज्ञान है पहले नहीं सी। पर अजोकी मनुखता जितनी अहंकारी है पहले नहीं सी। इस वास्ते मिलनसारी दे जज्बे खत्म हो गए, मेल मिलाप खत्म हो गए। कहंदे ने मैं दा मैं नाल मेल होना बड़ा बहुत कठिन है। मैं दा मैं नाल तनाव ते हो सकता है, मैं दा मैं नाल रंज ते हो सकता है, मैं दा मैं नाल टकराव ते हो सकता है, झगड़ा ते हो सकता है। मैं दा मैं नाल मिलन नहीं है, मैं दा तां तू नाल ही मिलन है। मैं ते तू दे च ही लीन हो सकती है। मैं दे आसरे ते वधदी है। दोवें पासे मैं करन वाले होवन तां दोहां दी मैं वध जाएगी, दोहां दा अहंकार वध जाएगा। एक पासे परमात्मा होवे और कमाल दी गल है, उसने किसी थां भी अपनी होंद नूं प्रगट करने की कोशिश नहीं की। मैं हाँ ऐसा वो ढंडोरा किधरे भी नहीं दिंदा। हाँ, जिन्हों ने उसनूं जाणिया है उन्होंने ढंडोरा पिछे पिटिया है, तू है मैं ते हाँ ही ना, मेरी ते कोई होंद ही नहीं है। लेकिन ईश्वर की तरफों ऐसा अज तक कोई दावा नहीं है। ये विनिम्रता की शिखर है कि समूह संसार का करता होवे ते करतेपण का कोई दावा नहीं। जबकि छोटी मोटी कृत का भी मनुख दावा करता है, इस कविता का करता मैं हाँ, इस किताब का करता मैं हाँ, इस वस्तु का करता मैं हाँ, इस कला का करता मैं हाँ। पर सारियां कला का ज्ञानी होंदे होया ते सारे संसार का रचेता होंदा होया ओदा दावा किसी थां ते भी नहीं है। कहंदे ने जिस दिन मनुख निर्दावे हो जाता है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਭਾਵ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਭਾਵ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਤਨਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਵਧਿਆ। ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਇਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਜੀਵ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 2-4 ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਦੇ ਚ ਅਹੰਗ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਟਿਆ। ਹੁਣ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਕਥਨੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੂੜ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸਚਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਵੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ, ਖਲਾ ਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਖਲਾ ਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਬਕਾਇਦਾ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तभी कह देता है कि जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। मता कि जगत नूं भुलेखा पै जाए ये ज्ञान मेरा है, मेरी सिरजना है, मैं इसका करता नहीं। ये ते जो परमात्मा दे इस खला दे मौजूद सी, मेरी पकड़ दे च आ गया, मैं जगत नूं कह देता है, मेरा स्वयं दा नहीं है, ये ते मौजूद सी। तो ये सच्चाई है, बहुत वड्डी हकीकत है। और इस सच दी अगर मनुख नूं पहचान होवे, बोध होवे, तो फिर अहंकार करना औखा हो जाता है। साहिब कहंदे ने विचार करदा है पाप दी पुन दी, ते कहंदा है मैं विचार कीता। हौं विच नरक सुरग अवतार, हौं दा मारिया होया ही कदी सुख भोगदा है, कदी दुख भोगदा है, कदी नरकां दे च, कदी स्वर्ग दे च। भाव पुन कर्म कीते ते ओदे नाल अहंग भाव रहा तां स्वर्ग, पाप कर्म कीते उसदे नाल जो अहंग भाव रहा नरक, नरक ते स्वर्ग। इस तरीके नाल ओ दुख ते सुख भोगदा है। हौं विच हसे, हौं विच रोवे, हौं विच भरीए, हौं विच धोवे। जे हसदा पिया ते इहदे च भी मैं भाव जारी है, मैं हस रहा, मैं रो रहा। ये प्रभु दी कृत नहीं, ये हासा मेरी कृत है और ये रोना मेरी कृत है। जबकि हकीकत है सियाणे मनुख जो प्रभु नाल लीन होए ने वो कहंदे ने हासा साडी कृत नहीं है, रोना साडी कृत नहीं है, ईश्वरी देन है। कहंदे ने पशु नहीं हस सकते। अगर वाकई कृत होंदी ते हासा शायद पशुओं कोल भी होंदा। किसी थां ते भी चौपाए जानवर खिड़खिड़ा के हसदे नहीं दिखाई देंदे। ये प्रभु दी कृत है और मनुख नूं जो है मिली हुई है। पर मनुख कहंदा नहीं मैं हसिया, मैं रोया। तो रोण दे च हासे दे च भी मनुख दा मैं भाव मौजूद रहिंदा है। हौं विच जाति जिनसी खोवे, जात दा माण, जिनस दा माण, नस्ल दा माण, इहदे च भी मनुख दा अहंकार वधदा है।
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ। ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਐਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो इस ढंग दे नाल अहंग भाव नूं सामने रख के मूर्खता कबूल करनी वास्तविक मूर्खता कबूल करनी नहीं है। अहंग भाव नूं सामने रख के अपनी गलती कबूल करनी, ये गलती कबूल करनी नहीं, उस तो होर गलतियां होणगियां, उस तो होर भुल्लां होणगियां। मोख मुकत की सार न जाना। इस तरह दा बंदा मुक्ति किवें प्राप्त होवे, अहंकार तो छुटकारा किवें प्राप्त होवे, इहदी सार नहीं जानदा, इहदा भेद नहीं जानदा। हौं विच माया, हौं विच छाया, अहंकार वस हो के ही कही जाता है कि ये जी माया है ये परमात्मा की बनाई हुई छाया है, होर कुछ नहीं है, होर कुछ नहीं है। लेकिन ये भी उसका अहंग भाव मौजूद है। हौमे कर कर जंत उपाया। इस तरह हौमे नूं वधा वधा के प्रगट कर करके इसनूं बहुत भारी भरकम करके साहिब कहंदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने यह निजाम इस ढंग का चाया कि बार बार उस हौमे दे बद्धे हुए जीव आउंदे ने।